Good morning, students. Welcome in online classes. Myself Rashmi Yande, your science teacher. Students, today we are going to start our 7th lesson, Nutrition and Diet. In this lesson, we will discuss about the concept of nutrition, how nutrition and diet they are important for us. Ideal diet means what? Nutrients, important nutrients, all these things we will discuss. Here certain food stuffs that means the food, the things we can consume, that is the food stuff. So living things take food and water and use them for a variety of purpose. For living things, water and food are important one. But why they are important? There are many purposes. First one, for obtaining energy. We require energy, and for that energy we must consume, we must take the foodstuffs. Second one, growth of the body. For proper growth of the body, energy is necessary, and that energy we can get from the foods to carry out day-to-day functions of the body. Day-to-day functions, that means different processes, that is the digestion का function body में चलता है, excretion का function body में चलता है, respiration, उसके बाद में osmoregulation. These are the different functions जो हमारे बॉडी में चलते रहते हैं, और वो बॉडी में ये फंक्शंस प्रॉपर तरीके से वर्कआउट हो, इसीलिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमें मिलेगी फूड से. टू फाइट डिसीजेस, जो हमको इन्फेक्शन कभी अगर होता है तो डॉक्टर बोलते हैं इनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. दैट मीन्स अवर इम्यून सिस्टम दे फाइट अगेंस्ट द डिसीज. टू इम्प्रूव अवर इम्यून सिस्टम ऑल्सो food stuffs are important one. So here the meaning of the nutrients and food stuffs. First of all, the definition of the nutrients. In living things, the process of taking in food and water and using it for growth and other purposes is called as the nutrition. Nutrition यानी क्या? कि सिर्फ डाइट कंज्यूम करना, फूड इनटेक करना नहीं, तो प्रॉपर प्रपोर्शन में फूड और वाटर इनटेक करना, उसका यूज़ किस लिए करना है? बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन. एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड यूजफुल फॉर दिस पर्पज आर कॉल्ड एज द न्यूट्रिएंट्स. और ये न्यूट्रिशन फुलफिल करने वाले जो थिंग्स है उनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स. ओके, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टफ्स. So here there are many 6 nutrients in our food. जो फूड यानी जैसे चपाती है, सब्जी है, रोटी है, दाल है, एग्स है, प्रोटीन डाइट है, सर्टन वेजिटेबल्स है, ये सब हम जो है कंज्यूम करते हैं. तो उससे हमें क्या मिलता है? हमको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स. These 6 are the main nutrients. These nutrients are present in the different food atom we eat in different proportions. Let us learn more about some of them. First of all, carbohydrates, carbs जिसको बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन क्या है? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट. जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है उन्हें हम कहते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. Our main need is of energy. It is fulfilled by carbohydrates. Hence, our diet includes a large proportion of cereals in the form of rice, chapati or roti, bhakri, bread, which contain the carbohydrates. Cereals are our staple food. ये जो गेहूँ, बाजरा, ज्वार, राइस, ये जो है ब्रेड, ये जो है हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं. तो इनका इनटेक हमारे डाइट में हमने करना चाहिए. नेक्स्ट वन, इट इज द फैट्स. Some part of our energy requirement is also fulfilled by fatty foods such as oil, ghee and butter.
We get energy in the form of heat from the food we eat. Heat is measured in the kilocalories. Hence, the energy in food items is also measured into the kilocalories or the calories. Fats, fatty acids, they are also important one. जो हमारे joints होते हैं उनका proper मतलब एक दूसरे से उनका रबिंग नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारे बॉडी में फैट का कंटेंट जो है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए. तो ये फैट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑयली थिंग्स, ऑयल से, घी या फिर बटर, ये कंज्यूम करके हम फैट्स जो है वो हमारे बॉडी में यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ से हमें ये फैटी या फिर फैट से हमें एनर्जी तो मिलती है, लेकिन whatever the energy it provide to our body, it measure into the calories. Children of growing age need to get approximately 2000 to 2500 calories from the food they eat. जो growing age के children होते हैं जिनका अभी डेवलपमेंट बॉडी का हो रहा है, उन चिल्ड्रंस में कितना प्रोपोर्शन चाहिए कैलोरीज का? लगभग 2000 से 2500 कैलोरीज. ओके, सो दिस इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. नेक्स्ट वन, इट इज द प्रोटीन्स. वी नीड प्रोटीन्स फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ, रिपेयरिंग द वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी एंड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस. प्रोटीन अभी क्यों चाहिए? हाइट की ग्रोथ, बॉडी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होने चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए प्रोटीन्स. मसल्स का डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए, सो फॉर मसल डेवलपमेंट ऑल्सो प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड. रिपेयरिंग द वियर एंड टियर, यानी अगर बॉडी में का मतलब बॉडी में का कुछ पार्ट या कुछ सेल्स जो है वो रप्चर हो गए, ब्रेक हो गए, कुछ इंजरी हो गई, तो उनको रिपेयर करने के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए. सो और डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जैसे मैंने आपको कहा, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सब लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू रखने के लिए भी हमें प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड. वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम द स्प्राउट्स. स्प्राउट्स यानी मटकी, मूंग जो रहते हैं ना, that are called as the sprouts. So ये sprouts, milk and milk products, meat and eggs in our food. So जो sprouts, ज़्यादा करके जो sprouts होते हैं, वो sprouts milk के products जो like पनीर, like curd, like milk itself, चीज़, बटर, ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स है इससे, या फिर मीट एंड एग्स, ये सभी से हमें मिलता है प्रोटीन, विच इज़ वेरी essential one. After the protein, next it is the minerals and vitamins. देखो स्टूडेंट्स, अभी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए. हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि आवर बॉडी दे रिक्वायर मेजर हाउ मेनी 6 मेन न्यूट्रिएंट्स. हाईलाइट करो इस लाइन को. कौन से 6 मेन न्यूट्रिएंट्स है? कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स. तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया, फैट्स के बारे में डिस्कस किया, प्रोटीन्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया. नाउ नेक्स्ट इट इज़ द मिनरल्स एंड द विटामिन्स. टू इम्प्रूव द बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिसीज एंड फॉर other life processes, the body needs vitamins, minerals and fiber in diet. We obtain these nutrients mainly from vegetables and fruits. सिर्फ राइस, चपाती, दाल, सब्जी, वेजिटेबल्स ये खाएंगे तो बैलेंस होगा क्या? नहीं. हमें जो विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए वो हमें कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से भी मिलते हैं. फ्रूट से हमें फाइबर भी मिलता है, एंड दैट फाइबर इट इज़ वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर आवर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. So we require vitamins and minerals in small quantities, but their deficiency can lead to various diseases. ये जो है वो माइक्रो अमाउंट पे है, यानी छोटे अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स नहीं, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर है. इनकी अगर डिफिशियंसी बॉडी में हो गई तो उसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेस जो है वो हो सकते हैं.
The body needs several inorganic substances. They are called as the minerals. Minerals are nothing but the inorganic substance. The table below gives example of some minerals and provides information about their function in the body, the various sources of minerals as well as the diseases caused by their deficiency. So here the chart it is. देखो, आपने कभी डॉक्टर के पास आप गए होंगे या आपने कभी देखा होगा तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अरे इनमें ना खून की कमी है, आयरन की इनमें कमी है। आयरन यानी क्या कि बॉडी में खून की मात्रा, ब्लड की जो प्रपोर्शन है वो प्रपोर्शन कम है। ओके, सो हाउ इट ऑकर्स और हाउ कैन वी मेजर दैट? हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मिनरल्स। फर्स्ट मिनरल इट इज द आयरन। क्या फंक्शन है आयरन का? आयरन यानी क्या? लोहा। लेकिन हम लोहा जो है, आयरन जो है, आयरन मटेरियल डायरेक्टली नहीं खा सकते। ये आयरन हमें फूड स्टफ्स में से ही मिलता है। तो इसका फंक्शन क्या है? कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये आयरन क्या करता है? पूरे बॉडी में खून जो है, खून में का जो ऑक्सीजन होता है वो कैरी करने का काम करता है और सभी पार्ट्स को प्रोवाइड करने का भी काम जो है वो ब्लड करता है। सोर्सेस मीट, स्पिनच, एप्पल्स, रेजिन्स। डेफिशिएंसी अगर आयरन की रही तो एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी होना बॉडी में, उसको हम बोलते हैं एनेमिक सिचुएशन। सेकेंड मिनरल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम स्ट्रेंथन द बोन्स एंड टीथ। हमारे बॉडी में जो बोन्स होते हैं ना, जो हमें स्टिफनेस देते हैं, हार्डनेस बॉडी को देते हैं, तो वो बोन्स के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए और टिथ के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कहाँ से मिलेगा ये? सोर्सेस क्या है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, दीज आर द सोर्सेस। डिफिशियंसी अगर रहे तो बैड टीथ। जो टीथ है ना वो इक्वल अमाउंट में ग्रो नहीं होते, इजीली ब्रेकेबल, जल्दी से वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। ब्रिटल एंड वीक बोन्स। ब्रिटल यानी इजीली ब्रेकेबल, वीक बोन्स, बोन्स जो है हमारे बॉडी में जो हड्डियां होती है वो भी वीक होती है। थोड़ा सा भी गिर जाएंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, थोड़ा सा भी खेलते खेलते अगर कुछ इंजरी हो गई तो बोन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी बॉडी में हो सकती है। सेकेंड वन, थर्ड वन इट इज द आयोडीन। क्या फंक्शन है आयोडीन का? कंट्रोल्स ग्रोथ, स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। जो बॉडी की ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने का काम और बॉडी में डाइजेशन या फिर अलग अलग ऐसे रिएक्शंस चालू होते हैं, जो रिएक्शंस चलते हैं उनको थोड़ा स्पीड अप करने का काम है जो आयोडीन करता है। सोर्सेस क्या है आयोडीन के? रेजिन्स, बीन्स, फिश एंड सी फूड। हमें सॉल्ट में से भी आयोडीन मिलता है और रेजिन्स, बीन्स, फिश, सी फूड, इसमें से भी हमें आयोडीन प्रॉपर क्वांटिटी में मिलता है। अगर आयोडीन की कमतरता रही तो गॉइटर ये डिसीज होता है। नेक्स्ट वन इट इज द सोडियम एंड पोटेशियम। व्हाट इज द फंक्शन? मेंटेन द बॉडीज वाटर बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम। बॉडी का कंप्लीट बैलेंस करना, वाटर का बैलेंस करना और मसल्स और नर्वस सिस्टम में कंट्रोल रखना, ये काम है सोडियम और पोटेशियम का। कहाँ से मिलेंगे ये? सॉल्ट, चीज, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस। और अगर इनकी डिफिशियंसी रही तो इनएफिशिएंसी ऑफ मसल्स, मसल्स का डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। सो दीज आर अबाउट द विटामिन्स, मिनरल्स, function of that minerals, sources and deficiency. Now next part it is the vitamins. vitamins में दो parts होते हैं, water soluble vitamin and water insoluble vitamin. water soluble यानी क्या? जो पानी में soluble है, जो पानी में mix होता है, और water insoluble यानी जो पानी में completely mix नहीं होता। So first of all, water soluble vitamins, vitamin B and vitamin C dissolve easily in water. So they are called as the water soluble vitamins. Highlight this point. They are thrown out of the body through the water in sweat and urine.
Hence a regular supply of these vitamins is essential. ये जो विटामिन बी और सी है ये वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं और बॉडी के बाहर जो है ये हम मतलब यूज होने के बाद में जो वेस्ट है वो बॉडी के बाहर हम फेंकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और यूरिन, इनके फॉर्म में हम ये बॉडी के बाहर फेंकते हैं। Hence a regular supply of these vitamins is essential, क्योंकि ये एक बार लिया और कंज्यूम किया ऐसा नहीं होता है। जैसे हम ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स लेंगे उसका यूज होगा और एक्सक्रीशन जब होगा मतलब बॉडी में जब यूरिन और स्वेट जब तैयार होंगे तो इसमें से ये बॉडी के बाहर भी जाते हैं विटामिन बी एंड सी। तो कंटिन्यूअसली बॉडी में इनका रहना ये इम्पोर्टेंट है। B1, B2, B3, B6, B9 and B12 are the important types of the vitamins B. Please highlight विटामिन B के कुछ टाइप्स है। कौन से विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 and B12। सेकंड जो है वो है वाटर इनसोल्यूबल विटामिन। These vitamins are insoluble in water, जो वाटर में मिक्स नहीं होते, but are soluble in fatty substances. They get stored in the body. Vitamins A, D, E and K are fat soluble vitamin. ये जो विटामिन है इनसोल्यूबल वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, बट दे आर सोल्यूबल इनटू द फैटी सब्सटेंसेस। सो दे गेट स्टोर इन द बॉडी। और ये विटामिन कौन से है, ए, डी, ई एंड के। दीज आर द वाटर इनसोल्यूबल बट दे आर सोल्यूबल इनटू द फैट्स। ओके, नाउ हियर इट इज अ चार्ट. This chart it is for your self study. विटामिन्स, सोर्सेस एंड फंक्शंस। विटामिन ए का विटामिन B1, B9, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इनके सोर्सेस क्या है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, इनका क्या मतलब दे हेल्प्स, वो क्या बॉडी में हमें हेल्प करते हैं, और अगर इनकी डिफिशियंसी रही तो कौन से डिसीजेस फॉर्म होते हैं, इसका ये चार्ट है। यू हैव टू स्टडी इट yourself. If any difficulty regarding to that, then ask me. So, remaining part we will discuss into the next lecture. आज जितना पार्ट हमने डिस्कस किया है एक बार वो पार्ट आप पढ़ लीजिए, उसमें अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।